الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ براہ راست مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس جو روشن دلیلیں بھیجی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں جتنی بھی وضاحتیں بتائی ہیں اپنے ہونے کی اور اپنے ایک ہونے کی، اور اس قرآن پاک کی اس کتاب کی یہ ساری دلیلیں جو ہیں وہ روشن ہیں، اور ان کا انکار جو ہے نا صرف بدکار کے اور کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ایک ایسی بات بالکل جو سیدھے واضح ہو، جیسے کہ اگر یہ سفید چیز سامنے کوئی رکھ کر کہے کہ یہ سفید رنگ ہے اس کا، تو ماننے والا، اس کو دیکھنے والا اس کو سفید ہی مانے گا اس کو دیکھ کر، اور کالے رنگ کو دیکھ کر کالا ہی مانے گا۔ اسی طرح جب رات ہوگی تو رات کو ماننے والا رات ہی مانے گا کیونکہ رات کا وقت ہے، دن کے وقت کو ماننے والا دن ہی مانے گا کیونکہ دن ہی ہے۔ لیکن جو اس کے خلاف کرے، حقیقت کے خلاف، کہ دن ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں رات ہو رہی ہے، سفید ہے وہ بول رہا ہے نہیں کالا ہے، تو وہ جو ہے وہ بدکار ہے۔ ویسے ہی اگر ہم نارملی اپنی زندگی میں ایسے شخص سے ملاقات کریں تو یقیناً خون جلا دیتا ہے وہ، اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے کہ یار صاف اور واضح بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی اس کے، یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہا۔ یقیناً وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی، وہ جان بوجھ کر اس کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ جیسے واضح ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں 2 اور 2 22 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں تو وہ اس کی مکاری ہے، اس کی بدکاری ہے۔ یہ اسی وجہ سے وہ ان روشن دلیلوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ آگے ارشاد فرما رہے کہ یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہوتی ہے جو اس وعدے کو توڑ دیتی ہے، اور جو وہ وعدے کو توڑ دیتی ہے وہ ایسے ہوتے ہیں بالکل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، ان کے دل میں تو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوتا اور نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، جبھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑتے تھے۔ ایک شخص وہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا تو ہے لیکن وعدہ توڑ دیا، اس کو تھوڑا سا ڈرایا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کیا جائے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے کہ نہیں یار میں غلط کر رہا تھا، واپس اپنے راستے پر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں یہودی و بنی اسرائیل کہ یہ براہ راست اللہ سے وعدہ کرتے تھے، اور اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کو بھی توڑ ڈالتے تھے، اور جب کوئی پیغمبر نبی ان کو سمجھاتا تھا تو وہ جو ہے نا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے بجائے اس نبی کو ہی قتل کر دیتے تھے کہ یہ جو ہے دین سے پھرا ہوا ہے، یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیطان سلیمان کے حکم میں پڑے تھے، اور یہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جو پڑ گئے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے اور نفع پہنچانے، اور بالیقیناً جانتے ہیں کہ اس کے کرنے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
यहाँ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, वाक़ये की तरफ मोड़ दिया कि ये जो लोग हैं ना, ये यहूदी और बनी इसराइली और ये जितने भी मुशरिकीन हैं, ये सब जो है ना उस चीज़ के पीछे भागते हैं, दुनियावी चीज़ों के पीछे। जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शयातीन का जो ज़ोर था और वो जो लोगों को बहकाते थे सूद में और लालच में, और किसी की सामान को कब्जा करने में, गरीब को और कमज़ोर को दबाने में। तो वो ये चीज़ें जो है ना, वो शयातीन इतने उरूज पर आ गए थे उस सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। तो वो जो है इतना बहकाने लग गए थे लोगों को कि वो उसमें इतने मुलविस हो गए थे इन सब में कि अल्लाह ताला अब वो उस वक्त की, उस दौर की मिसाल देते हुए बता रहा है कि उस दौर में ऐसा हुआ था कि ये लोग जो अभी भी हरकतें कर रहे हैं ना, उस दौर जिसके लिए हरकतें कर रहे हैं कि बाबुल एक मुल्क है हमारा, उसमें वहाँ पे हारूत और मारूत दो फरिश्ते उतारे गए थे और अल्लाह ताला ने उनको जानबूझकर दुनिया में भेजा था कि तुम ये जाओ दुनिया में लोगों को कहो कि हम दुनिया में, हम फरिश्ते हैं, हम दुनिया में लोगों को जो जादू सिखाने आए, ये एक आजमाइश है। अगर तुम इस आजमाइश में मुब्तला ना होगे तो तुम अल्लाह ताला के नेक बंदे कहलाओगे। ये जादू ना सीखो जो हम लोगों को सिखाते हैं आजमाइश के तौर पर। और वो जादू क्या था कि वो मियाँ बीवी में जुदाई करवा देता है, तलाक करवा देता है, अलहदगी करवा देता है। तो तुम ऐसा जादू ना सीखो हमसे। लेकिन लोग फिर भी सीखते थे क्योंकि लोगों को उस वक्त का जो ये चस्का था वो लगा हुआ था। वो जादू ये सीखते थे और मियाँ बीवी के दरमियान वो फूट डलवा कर अलहदगी करवाते थे। और अल्लाह ताला ये कह रहा है कि हारूत और मारूत जो ये दो फरिश्ते हैं, ये लोगों को सिखाते तो थे, लेकिन जब तक वो ये ना कह दें कि हम आजमाइश के लिए उतारे गए हैं, हरगिज़ भी तुम ये ना सीखो। अल्लाह की तरफ से ये तुम्हें इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर तुम सीखते हो तो तुम अल्लाह ताला के रास्ते से भटक जाते हो। लेकिन वो फिर भी नहीं मानते थे और उन्होंने दुनियावी फ़ायदे के लिए इस चीज़ को सीखा और मियाँ बीवी में तलाक करवाई और उनमें फूट डलवा के अलहदगी इख्तियार करवाई। जबकि ये इतना बड़ा और ये बदतरीन गुनाह है कि अल्लाह ताला ने खुद इसको जायज़ करार दिया है तलाक को। ये फ़ेल ऐसा है कि इसको जायज़ करार देने के बाद भी अल्लाह ताला इस अमल से खुद जो है नापसंद है, करता है, नापसंदगी इख्तियार करता है अल्लाह ताला कि कोई भी मियाँ बीवी अलहदगी इख्तियार करें या तलाक का मामला तय करें। बल्कि वो तो अल्लाह ताला तो ऐसा है कि अगर कोई दो मुसलमान भाई भी आपस में अगर नाराज़गी इख्तियार करें और 3 दिन तक वो बात ना करें तो अल्लाह ताला भी फिर नाराज़ हो जाता है कि इन दोनों में से किसी एक को नरमी इख्तियार करके झुक जाना चाहिए था, सुलह कर लेनी चाहिए थी। या फिर जो तीसरा मुसलमान भाई इनके बारे में जानता है कि इन दोनों में आपस में इख्तलाफ हो गया है और तीसरा दिन होने को आया, तो उस मुसलमान को चाहिए, मुसलमान भाई को, कि इन दोनों के आपस में सुलह करवाए। ये सबसे बड़ी नेकी का काम है ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद। और वो बदतरीन चीज़ है जिसके बदले वो अपने आप को फ़रोख्त कर रहे हैं। काश ये जानते, अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता। अगर ये जानते होते, ये अल्लाह ताला यही बात वो मुकम्मल कर रहे हैं कि अगर ये मुत्तकी बन जाते तो इनको अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब मिलता। वो मुत्तकी कैसे बनते कि एक चीज़ की फरहमी है, गलत चीज़ की फरहमी है, लेकिन जब वो फरिश्ते उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ को ना सीखो, ये आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से, तो अगर वो इस चीज़ से रुक जाते तो यकीनन मुत्तकी बन जाते। जैसे कि बाज़ औक़ात रमज़ान में हम इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं, तरह तरह की नेमतें अल्लाह ताला की हमारे पास, खाने पीने की अशिया हमारे सामने मौजूद होती है और हमारी ताकत और हमारी दस्तरस में वो होती है कि हम उसको हाथ बढ़ाएं और वो खा लें या पी लें। लेकिन फिर भी हम उसको ना खाते हैं ना पीते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला के खौफ की वजह से। तो इसलिए हम लोग मुत्तकी और परहेज़गारों की सफ़ में शुमार हो जाते हैं। और यही रोज़ा रखने वाला ही, उसकी इस 30 दिन में इतनी आदत हो जाती है कि वो अल्लाह ताला के रास्ते पर मुत्तकी और परहेज़गारी में बनता चला जाता है। बस ये है कि रमज़ान के बाद भी वो अपने आप को
काबू में रखे, अपने नफ्स को अगर कंट्रोल में रखेगा तो यकीनन वो जैसे मुत्तकी और परहेजगार 30 दिन में बन चुका है वो आगे ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस चांद रात होते ही बस आपे से बाहर हो जाते हैं, वही फिर दुनियावी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं, वही हमारी हरकतें पहले की तरह। तो जो 30 दिन में हमने बनाया होता है अपने आप को, वो सब मिलियमेट हो जाता है। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इन्होंने अपने आप को रोक लिया होता उस चीज़ से जो वो जादू सिखाते थे फरिश्ते हारूत और मारूत, अगर उसे रोक लिया होता तो यकीनन ये बहुत मुत्तकी और परहेजगार बन जाते हैं। ए ईमान वालो, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राना ना कहा करो, बल्कि उन्जुरना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ से इंशाल्लाह फिर इसका तफसीली इसका निशिस्त रखेंगे, इसको मैं और वज़ाहत के साथ बताऊंगा। यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने अपने ईमान वालों से मुखातिब होकर कहा है, और इसमें अल्लाह ताला के लिए सख्ती के साथ जो है वईद उतरी है, सख्ती के साथ हुक्म है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये तफसीली बयान है, थोड़ा सा इसकी अगली नशिस्त रखें इंशाल्लाह। और हारूत और मारूत भी एक हमारा तफसीली मौजू है, जैसे इसका जिक्र आगे आएगा तफसीली तौर पर, तो इंशाल्लाह इसके हारूत और मारूत जो दो फरिश्ते हैं इसके बारे में हम आपको तफसील से वज़ाहत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसी तरह अपने किताब की पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।